اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ادبی شعور ہے۔ اس میں میں شروع کرتا ہوں ایک ہمارے مشہور شاعر میاں محمد صاحب کے اول ہمت ثنا رب دی جیڑا مالک ہر دا اودا نام چتارن والا کسی میدان نہیں ہارتا۔ ادبی شعور کیا ہوتا ہے؟ ادبی شعور ایک آگاہی یا سمجھ ہے جو کسی فرد کو ادب یعنی شاعری، افسانہ، ناول، ڈرامہ وغیرہ کے مطالعے یا تجزیے اور تخلیق کے حوالے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ اور زبان کا علم کا نام نہیں، بلکہ اس میں درج ذیل عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ادبی شعور رکھنے والا بندہ صرف الفاظ نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے پیچھے موجود جذبے اور فلسفے کو سمجھتا ہے۔ نمبر 2، ادبی شعور یہ ہے کہ بندہ الفاظ کے پیچھے وہ موجود پیغام کا گہرا تجزیہ کر سکتا ہے۔ نمبر 3، الفاظ کی خوبصورتی کو پہچاننا، بیان کرنے کی نفاست اور زبان کی خوش اسلوبی کو سمجھتا ہے۔ نمبر 4، ادبی شعور اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ کون سی تحریر کس زمانے سماج سے ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ نمبر 5، ادبی شعور رکھنے والا شخص زبان کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ نمبر 6، ادبی شعور سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں ادبی شعور کے ذریعے ہم ادب کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر چھپے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم شاعروں اور ادیبوں کی طرف آتے ہیں۔ ادیب اور شاعر معاشرے کی زبان ہوتے ہیں۔ یہ بے جان تو وہ معاشرہ، وہ کلچر بے جان ہوتا ہے۔ وہ قوم کھوکھلی ہوتی ہے جس کے ادیب، اسکالر اور شاعر شعور زندگی سے خالی ہوں۔ شاعروں کی بات ہو رہی ہے تو شعر کو اگر 100 مرتبہ بھی سنا جائے تو بوریت نہیں ہوتی۔ نثر میں یہ بات نہیں ہوتی، اچھی سے اچھی نثر کو آپ دوسری تیسری بار پڑھیں تو بور ہو جاتے ہیں۔ اس کا لیکن شاعروں کا جو حشر یہاں پہ ہوتا رہا ہے، میں علامہ اقبال کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جس سے اردو زبان میں بے حساب جان، جوش، جذبہ اور امید آ گئی۔ لیکن شاعروں کے بارے میں انہی کا ایک دلچسپ شعر ہے کہ اس عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ کے بیچاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار۔ جو علامہ اقبال نے اردو شاعری پر بہت احسان کیا، لیکن ان کی 2/3 شاعری فارسی میں ہے، جو پاکستان سے باہر ایران سے لے کر ترکی تک سمجھی جاتی تھی، اور یہ بہت اہم اور بڑا گہرا کام ہے۔ ادبی شعور میں ہر معاشرے کے فلاسفوں نے اہم کردار ادا کیا، لیکن تمام فلاسفوں کو گہرا پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آئی کہ یہ زندگی کو کاملیت سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سے آ رہی تھے۔ علاوہ علامہ اقبال کے، جنہوں نے زندگی کو کاملیت سے دیکھا اور اس کا پیغام دیا۔ اچھا، پھر اب فلسفے میں نفسیات، اخلاقیات، جمالیات اور سائیکالوجی کے علیحدہ ہونے کے بعد اس کی اہمیت خاصی کم رہ گئی ہے، لیکن یہ زندگی کو کاملیت کے ساتھ دیکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ وہی ادیب عالمگیر شہرت پا سکے جو اپنے وقت اور معاشرے کے قید اور احمق سے آزاد ہو کر
چیزوں کو دیکھ اور بات کر سکیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاعر کو زندگی کے بارے میں بیلنسڈ اور پریکٹیکل اپروچ رکھنی چاہیے۔ باقی اچھے ادیب میں اچھا مزاح ہونا اور جو سبق آموز قصے کہانیاں یاد رکھنے اور صحیح طریقے سے لکھنے میں کچھ مہارت ہونی چاہیے، کیونکہ عام بندہ جو چیزیں لکھتا ہے اگر اس میں آپ بیچ میں قصے شامل کر دیں، اس میں لطیفے شامل کر دیں تو اس میں بہت زیادہ اسٹرینتھ آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا جواب ہمیں شاید سوال و جواب کی اس میں نشست ملے گا۔ میں چند ایک باتیں جو کرنا چاہتا ہوں کہ ادب میں جو سب سے گہری ادب کی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ مثلا ماجد دریا آبادی شروع میں فلسفی اور داریے تھے، وہ اکبر الآبادی کے پاس شاعری سیکھنے کے لیے گئے، عربی کی شاعری کا ان کا رجحان تھا، تو اکبر الآبادی نے ان سے ایک بڑا گہرا سیریس مذاق کیا۔ انہوں نے اسے انہیں قرآن پاک پڑھنے کو کہا کہ اچھی عربی شاعری بغیر قرآن پاک کو پڑھنے کے نہیں آیا کرتے۔ جو ہی ماجد دریا آبادی نے پڑھنا شروع کیا تو دوسرے رکوع تک پہنچتے ہوئے وہ تبدیل ہو گئے اور قرآن کے غلام بن کر رہ گئے۔ مجھے ایک بڑے اچھے شاعر لاہور کے رضوی صاحب تھے جو استاد الشعراء کہلاتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ فیض جو بڑے اچھے شاعر تھے، اور شاعر آپ بھی جانتے ہیں کہ فیض اس وقت تک فیض نہیں بنے جب تک انہوں نے قرآن کا اسلوب بیان نہیں کیا، اور علامہ اقبال بھی اس وقت بنے تھے جب انہوں نے قرآن کا اسلوب بیان استعمال کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا قرآن پاک پہلے برتن کو خالی کرتا ہے پھر بات کرتا ہے، کہ مثلا پہلے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے علاوہ اللہ کے، کوئی اللہ نہیں ہے علاوہ اللہ کے، تو پہلے یہ پوری نیچے برتن خالی کر کے پھر بات کرتا ہے۔ قرآن فطرت کی زبان ہے تو یہ بولتا ہے۔ تو میں نے جو مختصر تعارف کروایا ہے، ادب میں بہت سے نام تھے جس میں ہیگل، مغرب کے ہیگل تھے، رشیا کے دوستویسکی تھے، ٹاسٹائی تھے، فرانس کے سارٹر تھے، انگلینڈ کے برٹرانڈ رسل تھے، مولانا روم تھے ترکی کے، اور علامہ اقبال جو ہمارے بشکیر پاک و ہند کے تھے، اور بہت سے نام ہیں، لیکن میں چند ایک نام گن رہا ہوں جنہیں میں سیریس لیتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ باقی زندگی کے حقائق کو سمجھنا بھی چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے، یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ سوال و جواب کی محفل شروع ہو، اور میں سب سے پہلے عمران جاوید صاحب سے کہوں گا کہ یہ سوال و جواب شروع کریں۔ جی اچھا جی، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے فلاسفر برٹرانڈ رسل کا، اس کو اس کے دور کا سب سے بڑا فلاسفر تصور کیا جاتا ہے کہ اپنے دور، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، برٹرانڈ رسل صاحب 1972 کے قریب فوت ہوئے، ان کی عمر 96 سال تھی، 90 سال انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ ان کے والد اور دادا بھی اس فیلڈ میں تھے۔ بڑے گہرے اچھی اپروچ تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت گہرائی سے وہ خالی تھے۔ مثلا انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں کہا کہ وائی آم ناٹ اے کرسچن، اس میں انہوں نے وجہ بتائی کہ دنیا میں کوئی صحیح مذہب نہیں ہے، اور اگر تو ان سے اس کے بعد اس جگہ پہ نہیں، بعد میں پوچھا گیا کہ کیا آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو وہ کہنے لگے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل وہ پہلے ہی ڈر گئے تھے کہ ہمارے جو باطنی ہیں وہ کہتے ہیں قرآن پاک کے 70 باطنی معنی ہیں، حالانکہ قرآن پاک ایک ہی معنی ہوتا ہے جو آگے پیچھے آپ کو اس میں قید کر دیا جاتا ہے، یہ معنی یہ آگے بیان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آخری عمر کے آخری سالوں میں مجھے ایک میجر صاحب نے بتایا کہ وہ
साउथ अफ्रीका में बैठकर कुरान पाक को पढ़ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बहुत बड़ी डंडी मारी थी कि वो कुरान को पढ़े बगैर इसके बारे में राय दे रहे थे। तो इनकी 3 दिन बहस होती रही थी आर्च बिशप ऑफ इंग्लैंड से। उसमें इन्होंने ये सबूत देना खुदा नहीं है और आर्च बिशप साहब ने देना था खुदा है। ये रिकॉर्डेड बहस है। उसमें 3 दिन में ये ना वो ना सबूत कर दे सके जो आर्च बिशप थे कि खुदा है, और ये ना दे सके कि खुदा नहीं है। जी आगे चलें। जी सुस्ता, मेरा अगला सवाल ये है कि हमने शेक्सपियर का ड्रामा जो है हैमलेट जो है, इसकी बड़ी तारीफ सुनी है, तो नौजवानों को अदीब या शायर बनना चाहिए, इसके बारे में आप क्या टिप देंगे? देखिए, मैं जिस दौर में हम लोग बड़े हुए, हमारे से बड़े इनके अक्सर रेफरेंस देते थे, लेकिन चूंकि मैंने हैमलेट को पढ़ा तो मुझे कोई ऐसा खास ना लगा। फिर एक और अदीब मशहूर हैं टॉल्स्टॉय, जिन्हें मैं कहता हूं कि यूरोप के बेहतरीन अदीब हैं, रशिया के थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने हैमलेट को शुरू में पढ़ा तो मैं इससे बिल्कुल मुतासर ना हूं, मुझे सख्ती सा लगा। कहते हैं कि फिर मैंने जब मैच्योर हो गया तो फिर मैंने दोबारा इसे पढ़ा पुख्तगी के ज़माने में, मेरी वही राय रही जो पहले थी। यानी हैमलेट उस लेवल का नहीं था कि मैच्योर माइंडों को, सही मैच्योर पुख्ता माइंड को ये इन्फ्लुएंस कर सकता, मुतासर कर सकता। जी आगे चलें। अच्छा सर, आमतौर पर आप देखते हैं कि हमें जो चीज़ें नॉलेज की शक्ल में मिल रही होती हैं, इसमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा झूठ इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। तो हम अब इसमें से किस तरह से ये ढूंढ सकते हैं भाई यार ये बात वाकई सही है या ये बंदा सही कह रहा है, जो सच बोल रहा है? अच्छा देखिए, जो साफ झूठ है ये पकड़ा जाता है। एक दिलचस्प बात है कि हमेशा झूठ के साथ आधा सच शामिल किया जाता है। हर एक तारीख में, हर एक चीज में आपको आधा झूठ मिलेगा। हमारी तारीख भी झूठ है, जो इवन इस्लामी तारीख भी झूठ है, यूएनओ भी झूठ है, नोबेल प्राइज भी झूठ है मुकाबला हुस्न जो होता है ये भी झूठ है, हमारी क्रिकेट भी झूठ है, हमारी जमहूरियत भी झूठ है, और सियासत जिसे कहते हैं वो झूठ ही है। तो एक ही चीज सच्ची है, वो है कुरान पाक। उसके अलावा जहां पे भी आप जाएंगे आपको झूठ मिलेगा। लेकिन परखने का पैमाना ये है कि आपके अंदर एक जब पुख्तगी आ जाती है, आपको सच और झूठ में फर्क पता चलने शुरू हो जाता है। आपका अंदर बताना शुरू कर देता है कि क्या सही है क्या झूठ है, लेकिन इसमें बायस ना हो। हमने एक एनक लगाई होती है, मसलन मैंने दीन इस्लाम के सही होने की एनक लगा दी, ये हमें लगानी चाहिए मुसलमान को, लेकिन मैंने बड़ी लंबी तहकीक के बाद ये एनक लगाई। लेकिन जिसने एनक लगाई होती है वो मनफी या मुस्बत ही देखता रहता है। जिसने मनफियत की एनक लगाई है वो हर चीज को मनफी उसमें से जमा करता रहेगा, मुस्बत वाली हर चीज में मुस्बत को देखता रहेगा, उस चीज के बारे में जिसकी आप तहकीक कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपने चीजें इनमें जरूर रखनी है। जी अशरफ साहब, इसमें एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि अदब का अहम तरीन सबक जो है वो क्या है? देखिए, अदब पहली बात यह है कि आप बच्चों को खुद एतमादी सिखाएं, और ऊंचे लेवल की खुद एतमादी ऊंचे किरदार के बगैर नहीं आया करती। और ये अगर आप सिखाते हैं खुद एतमादी, तो इसमें 3 ही चीजें मैं अक्सर कहा करता हूं जो 10,000 किताबों का निचोड़ है, और कम से कम 150-200 अच्छी किताबों का निचोड़ है, कि आपने जो बार बार मैं कह रहा हूं कि हर काम करते वक्त कामयाबी आसानी ज़हन में रखकर करें, रिलैक्स होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये करें। घबराया हुआ माइंड कुछ भी नहीं कर सकता। रिलैक्स होकर करें, पॉजिटिव होकर करें, और शुक्र का सहारा लें। कामयाबी आसानी शुक्र, ये 3 चीजें हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस पहला है। तो ये आपने इसके गौर करना है। ये आपको बड़ा टाइम लगेगा इसकी जड़ें ढूंढते हुए और पहुंचते हुए, लेकिन ये सोने से ज्यादा कीमती पैगाम है। आगे चलें। अशरफ साहब, मैं रूहानियत के हवाले से भी कुछ यहाँ थोड़ा सा इसका टच देखना चाह रहा हूँ कि रूहानियत जो है अदब में कैसे मदद कर सकती है, या अगर मैं इसको सेंटेंस चेंज करूँ कि अदब की रूहानियत में क्या अहमियत है? अच्छा देखिए,
जब भी कोई आदमी किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है, खास तौर पर वो अदीब या शायर हो, तो इस पर एक इश्क में डूबने के बाद इस पर एक इल्का शुरू हो जाता है। ये लिख कुछ रहा होता है, हाथ कुछ और लिखना शुरू हो जाता है। ये बंदा कोई सोच रहा है तो ऊपर से आमन शुरू हो जाती है। ये जो इश्क में डूबने वाले बंदे हैं, वो उनमें ये चीज आया करती है। तो आप जो है जिस भी काम को करें उसमें इश्क, उसमें डूब जाए, तो आपके ऊपर दुनिया की बेहतरीन किस्म की आमद शुरू हो जाएगी। यानी लाशऊर दे रहा है, लाशऊर आपको पैगाम देना शुरू करे। दूसरा ये है कि जो हाईएस्ट फॉर्म की जो ज़ियानत होती है, दुनिया की सबसे ऊंचे किस्म की, ये रूह की ज़ियानत होती है। इस पे मैंने बड़े जो गहरे बंदे थे उनसे बातचीत की, वो मुझे ये कहते हैं कि जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो किताबों से हासिल होती है, उससे बहुत बड़ी रूह की ज़ियानत है। और ज़ियानत जो है पूरी दुनिया सर्च कर रहा है, वो ज़ियानत जिससे यूरोप खाली हो चुका, अमेरिका खाली हो चुका है। ट्रंप अगले दिन रो रहा था कि हमारे बच्चे बेकार हैं, स्कूल की कट करो जो फंड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वजह ये है कि वो रूहानियत से दूर जा चुके हैं। और जो ज़ियानत है, इसको जो थे हमारे मौलाना रूम, उन्होंने इसे अक्ल रूहानी कहा है, और गजाली ने इसे अक्ल नबी कहा है। ये रूह की ज़ियानत होती है। और मैं बार बार टेस्ट कर चुका हूँ, और हर बड़े बंदे में मुझे मजहब का या उसकी फैमिली बैकग्राउंड में मुझे टच जरूर मिला। जी सर मैं मजीद क्वेश्चन कर सकता हूँ? करें करें। अच्छा सर जी, अदबी शऊर जो है ये जरूरी क्यों है, और इसको हम पैदा कैसे कर सकते हैं? देखें, अदबी शऊर के लिए आपको जिंदगी का शऊर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप मुस्बत सोच में अगर रहते हैं, आपको उस फील्ड में स्टडी करने से आप में खुद एतमादी आ जाती है। जब खुद एतमादी आ जाती है तो आप हर चीज को एक विनर की नजर से देखना शुरू करते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं उसमें, तो आपके ज़हन के खाली खाने खुलने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको नॉलेज आना शुरू हो जाती है। इल्म यानी पढ़ने से नॉलेज आती है, प्रैक्टिस से वो नॉलेज पुख्ता होती है, तो आपके ज़हन के जो बंद खाने हैं खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके लिए वो चीज़ आसान से आसान तर होती जाती है। तो बस मुस्बत सोच रह कर खुद एतमादी के साथ शुरू करें और उसे आसान समझ कर करें। जी आगे। मेरे साथ चंद एक क्वेश्चन बाकी हैं, फिर मैं दूसरे दोस्तों को भी टाइम देता हूँ। अदबी शऊर रखने वाला शख्स किस तरह आम कारी जो है उससे मुख्तलिफ होता है? अदबी शऊर रखने वाला शख्स जो आम कारी है, एक आम बंदा है जो जिसमें अदबी शऊर मौजूद नहीं है, और एक है जो जब वो स्टडी कर रहा है उसमें अदबी शऊर है। जी जी। तो अदबी शऊर रखने वाला आदमी चूंकि सवाल को गहरा समझता है, वो मुख्तलिफ जावियों से समझ सकता है, देख लेता है, वो जिंदगी को गहरा समझने की सलाहियत रखता है। तो वो जो भी चीज़ हो उसकी गहराई तक चला जाता है। तो आम आदमी में वो शऊर, वो समझ नहीं होती है। अच्छे अदीब में कुछ ना कुछ शऊर ज़िंदगी पाया जाता है। तो इसकी बिना पर वो सही तरीके से चीज़ों को देख समझ और उनका वजन कर लेता है। जी साहब, अदबी शऊर हमारी सोच पर किस तरह असरअंदाज होता है? देखिए, हमने लोगों की जो बड़े दिमाग थे उनकी टीचिंग से हमने इस्तेफादा करना है। तो जी मतलब हर फील्ड में अच्छे बंदे निकले हैं। इवन कुरान की जो तशरीह है और तफसीर है, ये बहुत से बंदों ने दूसरों से बेहतर की। मतलब मोदी साहब ने अच्छी की, डॉक्टर साहब ने अच्छी की। हालांकि कुरान का पैगाम तो आ चुका है, लेकिन तशरीह और तफसीर हमें ज़रूरत होती है। तो ये अपने अपने तौर पर लोग लगे रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर तरीका ढूंढते हैं, और ये फिर होता है। साहब, मेरा आज का आखिरी सवाल है कि तालीम और तरबियत में अदबी शऊर का क्या किरदार है? देखिए, जो टीचर हो उसे अदबी शऊर होना चाहिए। दूसरा ये, हमारी जो तालीम है इसमें हमें खुद एतमादी नहीं सिखाई जाती, बुलंद किरदारी नहीं सिखाई जाती, मुस्बत मनफी सोच नहीं सिखाई जाती, ठीक है। बच्चों को सिर्फ एक रट्टू तोता बनाया जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि वो जो
जिसे हम कहते हैं तोता और खोता पंजाबी में, हमें ये बनाया जाता है। इसकी वजह से नंबर भी उसी बुनियाद पर दिए जाते हैं जिस बच्चे ने किताब रखी है, और यही बच्चे जाके इंग्लैंड में हार्वर्ड और इसमें ऑक्सफोर्ड वगैरह में उन्होंने फेल कर दिया कि ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनते हैं। हम चाहते हैं कि पैगाम को पढ़ें, फिर क्रिएटिव अपना जवाब दें अपना ज़हन इस्तेमाल करके। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिखानी चाहिए, हमें मुस्बत मनफी सोच सिखानी चाहिए। ठीक है, हमें बहुत सी चीज़ें, मेरी जो किताब थी खुद शनासी रूहानी अलूम और टीचिंग, इसमें मैंने काफ़ी गहरी बात की। जी शुक्रिया असफ साहब, बड़ा अच्छा लेक्चर रहा और सवालात भी इमरान साहब के बहुत अच्छे थे। मौजू बड़ा खूबसूरत और मज़ेदार है मगर थोड़ा सा खुश्क है। अच्छा, मुझे आप थोड़ा गाइड करेंगे कि जो डिजिटल माशरा है यानी उसमें इतनी तेजी आ चुकी है कि अदब शायद जो मयार मांगता है एक स्लो रफ्तार माशरे की, सुस्त रफ्तार। क्या ये बात मेरी किसी हद तक दुरुस्त है कि आज का जो डिजिटल जो माशरा है तेज, ये अदब की तख्लीक में रुकावट पैदा करते हैं? फिलहाल ये रुकावट पैदा कर रहा है कि हम पर एक इल्म की भरमार हो चुकी है। वो इल्म क्या है? वो इल्म आप ये समझें कि आधा सच आधा झूठ है। तो ये आधे सच और आधे झूठ ने हमारा बहुत सी चीज़ों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। लेकिन कुछ वक्त आएगा, थोड़े से वक्फे के बाद, कि अच्छे अदीब सामने आएंगे। मैं आपको एक दिलचस्प बात कहता हूँ कि आप बहुत सी चीज़ें अगर आप चैट जीपीटी वगैरह पर लिखते हैं तो आपको इतना खूबसूरत लिखो मजमून भी मिल जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम हो उनसे पूछे, वो करेंगे। लेकिन इससे आगे चलकर बहुत से अच्छे और गहरे अदीब सामने आएंगे जो इसकी भी नॉलेज रखते होंगे और अपनी तरफ से तख्लीकी भी होंगे। तो ये फिलहाल रुकावट है, लेकिन आगे चलकर ये हमें इसकी लिमिटेशन हमें पता चलेगी जो नॉलेज इस पर दी जाती है। जैसे ये कंप्यूटर कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये कभी पेशन गोई नहीं करता। ये कह सकता है कि इम्कान नजर आ रहे हैं, लेकिन इंसानी ज़हन इसी तरह कर लेता है। इंसानी ज़हन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी करता है जो कंप्यूटर से आगे नहीं निकल सकता। नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें कमी रह जाती है। करने वाले इंसान किस दिन हम इस मौजू पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अभी आपने बड़ी प्यारी बात कर दी। मेरे दूसरा सवाल बिल्कुल इसी से रिलेटेड था कि आज का जो तख्लीक का दौर कम और कॉपी का दौर ज्यादा है कि आप जैसे चैट जीपीटी और नंबर आप दूसरी जो ऐसी आपके पास मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर कि आप कुछ भी डालते हैं और अपनी मर्जी का रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो फिर इस तरह से तो मुझे ये बात समझ आई। आप मेरे साथ आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि डिजिटलाइजेशन है वो अदब को खत्म कर रही है, मार रही है, कत्ल कर रही है, क्या कर रही है? इसको काफी हद तक वक्ती तौर पर कमजोर कर रही है, इससे ज्यादा। लेकिन वो चूंकि वो उसमें जो चीज फीड की जाती है वो प्रोफेसर ने ही फीड की है, तो इतने बेहतर तरीके से वो नहीं उसको पेश कर सकता जितने एक अच्छा तख्लीकार करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज बढ़ते जाएंगे, लेकिन इंसान उससे एक कदम आगे ही रहेगा। इसलिए आप इस बारे में वरी ना करें, क्योंकि कंप्यूटर हमें तंग बड़ा करेगा, लेकिन इसका एक फायदा भी है कि झूठ जो है सच से अलग हो चुका है। जो सच से टकरा वो अपना सर ही फटेगा उसका। और ये जो नेट आया है इसने बहुत से झूठ को सामने लाकर उसको ओपन कर दिया है, उसको नंगा कर दिया है। तो हमें पता चल गया है कि जिसे भी आप मौका देंगे वो जरूर इसे इस्तेमाल करेगा। तो बहुत सी और चीजें हैं, नेट वाले भी इसे इस्तेमाल करेंगे, नया मजहब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल हमें मजहब पे आप आए तो मजहब की मैं बात करता हूँ। हमें मजहबी किताबें या जो मजहबी तालीमात है वो इस तरह से अदब से हमें कुछ ज्यादा करीब नहीं मिलती, या हमें को अदब की ऐसी हौसला अफजाई नजर नहीं आती। खास तौर पे जो बाद की जो किताबें लोगों ने लिखी, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आसमानी किताबों की बात नहीं हो रही। तो इस हवाले से मतलब जो है वो
क्या कोई मजहबी जो लोग थे वो अदब से दूर थे, या अदब जो है वो उस जमाने की जरूरत नहीं थी? देखें, ये हमें जो पिछला दौर आया है इसमें रोशन ख्याली की एक वेव आई है जो हमारे अदीब थे, जिसमें सब्त हसन और बला बला बहुत से और थे। तो मैं इन दानिश्वरों को कहता हूँ कि ये गहरी दीन की शऊर नहीं रखते थे, रूहानी शऊर से बहुत दूर थे। वो दीन का अगला एक हायर स्टेज है, एक हायर किस्म है, लेकिन ये दीनी शऊर नहीं रखते थे, ये जिंदगी का आधा शऊर रखते थे। उसी बुनियाद पर ये बातें करते रहे और इन्होंने लोगों को बहुत कंफ्यूज किया। उनको बहुत सा लिटरेचर वो मिल गया जो आप समझें कि कम्युनिस्टों ने लिखा हुआ था, जो दूसरों ने लिखा हुआ था। तो इस बिना पर ये लोग जो हैं दीन से दूर होते चले गए। इनके पास बहुत ज़्यादा लिटरेचर था और हमारा मौलवी इसके लिए तैयार नहीं था। मोदी साहब ने गो जमीयत की शक्ल में एक अच्छी रेजिस्ट किया इसे, वरना पाकिस्तान के 90% बंदे आज दैरी हो चुके हैं। जमीयत की बदमाशी से लोग तंग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो बदमाशी उस दौर में की थी, भुट्टो के दौर में, इसका नाम आपको दे सकता हूँ उन बंदों का। तो ये इंशाल्लाह अच्छा, बेहतर से बेहतर मजहब जो हमारे जो वेस्टर्न जो सोच है, उसने अदब को अपने नजरियात के इजहार का जरिया बनाया जी। यानी हमें नजर आता है कि जो भी अदब वहाँ से शुरू हुआ है पिछले 50 साल में या उससे पहले, कम्युनिज्म हो या के खिलाफ कैपिटलिज्म ने भी जो जदोजहद की है, या इस्लाम के खिलाफ जितनी भी बातें हुई हैं, उन्होंने उसको अदब का सहारा लेकर उसको इस्तेमाल की है। यानी आप क्या समझते कि मुसलमानों में ये एक कोई शौरी कमी थी कि हमने अदब के अंदर के फील्ड में रह के उनका मुकाबला नहीं किया? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि उस दौर में जो चंद एक लोग थे जिन्होंने कुछ इस पे बात की, लेकिन मुकाबले में वो 400 सालों से तैयारी कर रहे थे। क्योंकि जब यूरोप में मजहब की निशाते सानियाँ हुई, पहली बात यह है कि जब मैंने क्रिश्चियनिटी को गहरा पढ़ा तो ये मजहब ही नहीं था। पहला 100 साल ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन ये कहलाते रहे। फिर जब निशाते सानिया मार्टिन लूथर किंग ने जर्मनी से शुरू की, तो उसके बाद इन्होंने मजहब के खिलाफ इतनी बातें लिख दी जो दरअसल में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी, लेकिन वही चीजें उठाकर हमें मारी गई। और हमारे बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप जरा थोड़ा और खोलेंगे जी। इसमें यह है कि देखें, उन्होंने जो दीन इस्लाम है ये तो इंसानियत का पैगाम है, दुनिया को प्यार भरी जगह बनाने का नाम जिहाद है। मतलब जिहाद की 5 किस्में हैं। ये आपका जबान माल के साथ है, जबान के साथ है, कलम के साथ है, नफ्स के साथ है, तलवार के साथ। तलवार के साथ दिफाई जिहाद है, लेकिन इन्होंने मीडिया के जोर पर उसे एक वैश्याना जिहाद बना दिया कि बच्चों को कत्ल करो। इसी तरह हर चीज में झूठ शामिल करके मजहब को, जो क्रिश्चियनिटी में जितना जुल्म होता रहा वो आपको भी पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अल्लाह माफ करे, उसको ला के ये बताया गया। लेकिन इस्लाम तो हर किसी भी जान को उसकी बड़ी अहमियत देता है, बल्कि बाइबल के अपने अल्फाज हैं कि जिसने एक बंदे को कत्ल किया उसने तमाम को कत्ल कर दिया। ये न्यू टेस्टमेंट जो है, अहदनामा जदीद, तो यही कुरान में आया है। यहाँ आपने एक बड़ी कमाल की बात कर दी कि जो उनके ज़हनों में जी जो क्रिश्चियनिटी, ज़ायनिस्ट जो क्रिश्चियनिटी है, उसके जो मजालिम या वो जो भी उनके पिक्चर उनके दिमाग में थी, उन्होंने वहां पे जो अदीब थे या उन लोगों के शायर या जो लोग भी थे वहां पे, उन्होंने वही तस्वीर उठा के इस्लाम की उसके ऊपर पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट कर दी बस। यानी ये आपने जो पॉइंट आउट किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी और बड़ा अदबी जुर्म है कि आपने कितनी बड़ी ज्यादती की है सच्चे दीन के साथ। अच्छा, अदब जो है उसको बहुत सारी किस्मों में उसको हम शामिल करते हैं, तो क्या जासूसी नॉवेल, मूवीज, फिक्शन, इस पे चाहे वो प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, वट एवर क्रिएटेड जो भी है, क्या इसको भी हम अदब में शामिल करेंगे या अदब के अंदर ये नहीं रहेगा? नहीं, ये करते हैं क्योंकि ये जिंदगी की हकीकतों को बता के ही पॉपुलर होते हैं। वही जो चाहे वो जासूसी नावल हो, बचपन में हम भी पढ़ते रहे, आप भी पढ़ते रहे, बिल्कुल पढ़ते रहे, और ज़हन पे हमारा बड़ा असर हुआ। बिल्कुल हुआ, शायद ये सवाल भी वहीं से आया हो। जी, नसीम जाजी साहब ने सच के साथ इन चीजों को शामिल किया, बिल्कुल सही, और बड़ी खूबसूरत तहरीरें बनाई। उनकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो कुछ है।
لیکن یہ ہوتا رہا کہ یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ امیجنیشن کو آخری حد تک کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. امیجنیشن کی جو آخری حد ہے اس تک استعمال کریں کہ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں. تو اس کے کوئی فوائد بھی ہیں. میں نے خود ان سے سیکھا ہے. جو چیزیں میں نے ان میں دیکھی تھی وہ اپنی زندگی میں ہوتی ہوئی دیکھی ایک حد تک. تو یہ جو کرتے ہیں جاسوسی اور فکشن اور فیوچر کی اس میں باتیں شامل ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی سچے پیغام ریویل ہونے القاء ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو عشق میں ہوتا ہے اس پہ سچے پیغام بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. جی اچھا، کیا یہ حیرت ناک واقعہ نہیں ہے کہ یورپ کی جتنی بھی ادبی تخلیقات بڑی بڑی ہوئی ہیں وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوئی ہیں. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا. اور ایشیا میں خاص طور پہ جو پاک مسلمانوں کے ہاں جو بڑی اچھی تخلیقات ہوئیں، بڑے بڑے شعراء اور ادیب آئے، وہ سارے وہ لوگ تھے جو قیام پاکستان کی تحریک سے کہیں نہ کہیں ہمیں وابستہ نظر آئے. میں بہت پرانے لوگوں میں نہیں جا رہا، میں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے 100 ایئرس کی. اچھا، اگر اس کو کیا جنگ وہ ایک انسان کے دماغ کے اندر وہ تبدیلی لے کے آتی ہے جو ایک وہ شمع روشن کرتی ہے جو ادب کی تخلیق کے لیے انسان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ میری یہ 2 مثالیں اگر غلط ہیں تو تصحیح کریں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جنگ ایک حقیقت ہے. میں اکثر کہتا ہوں، اور یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ میں نے مختلف جگہ پڑھے کہ اچھے اور برے کی جنگ ازل سے چلی ابد تک جائے گی. اور یہ جنگ ہر کلچر میں، ہر براعظم میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں لڑی جا رہی ہے. ایون ہر پارٹی گروپس ہیں، ان میں لڑی جا رہی ہے. ایک طرف اچھائی کے نمائندہ ہیں، دوسرے برائی کے ہیں. اور اس بارے میں نپولین نے جو بات کی تھی، میں لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ایک طرف طاقت ہوتی ہے، ایک طرف علم ہوتا ہے. طاقت کا نمائندہ تلوار اور علم کا نمائندہ قلم. نپولین نے کہا کہ قلم اور تلوار کی جنگ، بلکہ تلوار اور قلم کی جنگ ازل سے چلی ابد تک جائے گی. اس میں اکثر یہ معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ تلوار جیتے گی، لیکن آخری اور حتمی فتح ہمیشہ قلم کی ہوا کرتی ہے. تو یہ چلتی رہیں گی، جنگیں چلتی رہیں گی، اچھائی اور برائی کی جنگیں. ہم نے اچھائی کا ساتھ دینا ہے اور دنیا کو پیار بھری جگہ بنانے کی کوشش کا نام ہی جہاد ہے. اصل جہاد یہ ہے، اس کی روح کو آپ سمجھیں. یہ اچھا، ابھی آج کا جو جوان ہے اس ڈیجیٹلائزیشن اور اتنی تیزی اور اس کے بعد آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ادب سے دور ہے؟ اگر وہ دور ہے تو اس کو ادب سے جڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انسان کے لیے ادب تو چلے گہری بات ہے. میں کہتا ہوں انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، پہلا ہے کہ وہ اپنی صحت ٹھیک رکھے. سوری، میں بہت بنیادی چیزوں پہ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ لائبلٹی، آپ پوری فیملی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بنیادی چیز. صحت کے بعد آپ کی روزی کمانے کا مسئلہ ہے. روزی کمائیں، تو دوسرا چیلنج ہے. اس کے بعد خوش رہا کریں. جب یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دین یہ تینوں چیزیں، اسلام یہ تینوں چیزیں لے کر چل رہا ہے. ٹھیک؟ تو آپ جو ہے جب یہ چیزیں سمجھیں گے، یہ ہر آدمی کو سیکھنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد نیٹ آپ کو کنفیوز بہت کم کرے گا. پھر آپ کو تھوڑا بہت زندگی کا شعور آئے گا، آپ اچھے برے کی پہچان کر سکیں گے. پھر نیٹ آپ کو کنفیوز نہیں کرے گا. آپ ادب کی جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے لگ پڑیں گے اور آپ کی اپنی سوچ بھی بڑی گہری اور بڑی کریٹو ہو جائے گی. جی. اچھا، آپ نے بھی اتنی کتابیں لکھی، بڑے بڑے ادیب، فلسفی، دانشور، اتنی بڑی بڑی تخلیقات کر لیتے ہیں. علامہ اقبال جیسے بہت بڑی شخصیت، اس سے نیچے آئے فیض ہے اور بہت سارے لوگ ہیں. آج کے دیکھیں فراز ہے، پروین شاکر ہے، اب آج پتہ نہیں آج کل کون ہے. اچھا، یہ جو ایک انسان کے دماغ میں جو اتنی بڑی تخلیق آتی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں آئی، میرے ساتھ یہاں 4 بندے بیٹھے ہیں، شاید ان کے ذہن میں بھی نہیں آئی. یہ کوئی روحانی انسان کا رابطہ ہوتا ہے؟ مطلب اس کا وہ کون سی چیز ہے جو اس کے دماغ کو اس بات پہ قائل کرتی ہے اس چیز کو لکھنے کو، ایسا کرنے کو
ये कैसी है? अच्छा देखिए, हमारे एक कलेक्टिव माइंड होता है। अब तो प्रूव हो गया है, सेगमेंट फ्राइड ने जब लाशऊर की बात की, उसके शागिर्द कार्ल यूंग एडलर ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की कि इज्तिमाई लाशऊर, हम सब के लाशऊर आपस में जुड़े जुड़े हुए हैं। तो उसमें कायनाती लाशऊर भी आ जाता है, जो अभी तक उनको समझ नहीं आया, लेकिन हम रूहानी लोग इसे समझते हैं। कुछ आलम मिसाल का नाम देते हैं, कुछ और, लेकिन एक कायनाती लाशऊर है जिसमें तमाम दुनिया की नॉलेज है। तो जब भी कोई चैलेंज आता है तो माशरे में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो उस चैलेंज का हल जानते हैं, और वो काफ़ी हद तक वो हल निकाल लिया करते हैं। जब भी कोई बीमारी आती है उसका इलाज किसी पर इल्का कर दिया जाता है, ख्वाब में या जागते हुए। ठीक है, जब ये चीज़ होती है, इसी तरह जिस माशरे को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक बंदे आ जाते हैं। लेकिन माशरा जो है मजबूत होता है जब वो पॉजिटिविटी पर, सच्चाई पर खड़ा हो, उसका जो पैगाम है उसको ज़्यादा। मसलन पिछले दौर में लेकिन दीन इस्लाम है, जब वो कहता है कि जब अल्लाह ने दुनिया बनाई तो अल्लाह ने दुनिया बनाकर कानून लगा दिए, एक सच्चाई और नेकी का पैगाम, एक शैतानी कानून। शैतानी कानून, जिसने नेकी सच्चाई पर अमल किया दुनिया में फिलहाल पाई, आगे भी जिस कौम ने अमल किया वो दुनिया में अरूज पाई उसने। और पिछले अगर आप 50 साल देखते हैं तो कम से कम मगरिब कौमों ने हमसे ज्यादा अपने बंदों को अपनी लाइफ अच्छी दी है, इस वजह से वो आगे चले गए। उनमें ज्यादा सियासतदान और हमारे अपने जो क्रिएटिव लोग हैं वो उनमें जाकर शामिल हो रहे हैं। तो ये जो इज्तिमाई लाशऊर है, इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं इनके ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात आए करते हैं और मुख्तलिफ क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हसास लोग हुआ करते हैं आम लोगों से। ये उन्हें पिक करते हैं और पिक कर कर इसे लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जितने अच्छे राइटर मुझे मिले, मैंने जब इनकी जिंदगियों को गौर से पढ़ा तो ये सब के सब ओवर सेंसिटिव लोग थे। मसलन मैं एक बार इनको पढ़ रहा था, अहमद नदीम कासमी साहब को। उन्होंने कहा जी मेरी मिसाल ऐसे है कि मैं हर रोज एक नया कुआं खोदता हूँ, पानी पीता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ। हर रोज एक नया कुआं खोदता हूँ। फिर हैगल ने कहा कि मैंने कितनी बार खुदकशी की कोशिश की कि मैं अब जिंदगी से इतना बेजार हो चुका था, मुझे जिंदगी में इतनी तकलीफें महसूस होती थी। और यही टॉल्स्टॉय ने कहा कि मैंने कितनी बार खुदकशी की कोशिश भी की। तो जितने थे, जब मैंने पढ़ा, ये सब के सब ज्यादा हसास थे आम लोगों से। आज जब जरूरत से ज्यादा हसास हो, उसे डायरेक्शन ना मिले, ज़हनी मरीज और शीज़ोफ्रेनिक बन जाता है, जो हमारे माशरे में हर दूसरे तीसरे घरों में आपको लोग मिले। बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे। लेकिन अगर इसको डायरेक्शन मिल जाए तो ऐसा अदीब और जीनियस बन जाया करता है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये लोग अपनी तनकीद से डरते हुए इतनी मेहनत करते हैं कि हम पे उंगली ना उठे, और उंगली उठती है परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, फिर ये हकीकत के करीब पहुंचना शुरू हो जाते हैं। यानी इनका पैगाम मुकम्मल सच तो नहीं होता है, लेकिन आम लोगों से आगे चले। बहुत बेहतर। मैं थोड़ा सा आपको इसकी तशरीह करना चाहिए। जी आगे चलें। अच्छा, आज जो 2025 में आप किसको समझते हैं कि वो एक अजीम अदीब है, अदीबा है, शायर है, शायरा है? लेकिन जो जदीद शायर हैं, पिछले जो दौर थे, इनमें मैंने जब गालिब को पढ़ा तो गालिब आम लोगों के लिए एक अच्छा शायर होगा। लफ्ज उसने अच्छे इस्तेमाल किए, कोई पैगाम ना दिया। फिर मैंने आगे चले तो फैज अच्छे थे, लेकिन इनको कम्युनिज्म ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। कम्युनिज्म की ऐनक लगाकर ये हर एक चीज को देखते रहे, और इनका पैगाम एक कम्युनिज्म जो एक आइडियोलॉजी जो फेल हो चुकी है उसमें ये फंस कर रह गए। शायर अच्छे शायर थे, वो सोशलिज्म इस किस्म के आइडियाज में फंसे हुए थे, तो ये तमाम शायर बेकार हो गए। उसके बाद फराज ये वो, लेकिन फैज साहिर और थे। लेकिन इन तमाम से ऊपर मैं अल्लामा इकबाल को लेता हूँ, लेकिन गलतियां उन्होंने भी की होंगी, मैं उनकी गलतियों की कुछ तोजी, लेकिन तकरीबन उन्होंने सच्चा पैगाम दिया, जिस चीज को छेड़ा उसका हाल भी दिया। तो ये तमाम चीजें उनके पैगाम में शामिल थी। जोश और उम्मीद जो लोगों को जरूरत होती है आज, उनसे उनका पैगाम जो भरा हुआ है। आप उनका कोई शेर ले लें, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कदूसियो जबरूत,
یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. گل و لال جگرے گل و لالا میں جس سے ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کیا بات. اس قسم کے ان کے 20 شعر ہیں. جی آگے چلیں. میں آئی ایم ویری انسپائرڈ کہ علامہ اقبال کو جس طرح سے آپ نے الیبوریٹ کی ہے جی یہ کمال ہے. اور اچھا مجھے وہ ایک سیف کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. جی یعنی یہ ادب کی جو تخلیقات ہیں یورپ کی، مشرق کی، پاکستان، انڈیا، اچھا ان تخلیقات میں آپ مطلب کوئی ٹپ دیں. یعنی ایک تو الفاظ کا گورکھ دھندا ہے جی لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی ایسی ٹپ دیں گے کہ اچھی اچھی ادبی کتابیں جو آج کا نوجوان یا میرے جیسا پڑھ لے اور اس سے کوئی علم حاصل کرے اور کوئی باادب ہو جائے. دیکھیں میں جو اچھی کتابیں ہیں ان میں اگر نام لوں گا تو اس وقت میرے ذہن میں قرآن پاک سے بہتر کتاب کوئی نہیں آئی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے زندگی کا شعور لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ آپ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ان کو سمجھیں. بنیادی ضرورتوں کو جب آپ سمجھ جاتے ہیں، اچھی صحت ہونی، اس کے بعد روزی کا بندوبست ہونا، اور یہ تمام چیزیں آپ کو ہونی چاہیے، مثبت سوچ ہونی، زندگی مقصد ہونا. جب آپ یہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے آپ دوسروں سے بہت بہتر طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے. زندگی کی حقیقت، زندگی کی سچائیوں کو سمجھیں. یہ جو ادیب ہوتے ہیں یہ ایک قسم کے ہمارے امام ہیں. علامہ صاحب نے اس پر ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے جو سنا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ ہے: تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دیکھے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، دیکھے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.